Friend, yesterday I had started the chapter 2. Chapter 2 from your history. That was nationalism in India. Okay? Nationalism in India. So, in that chapter, I had explained that what is nationalism and in which year Mahatma Gandhi came to India. What do you mean by Satyagraha? And at which place Mahatma Gandhi started his first non-cooperation movement. Okay, so anyone can give the answer. He at name the year in which Mahatma Gandhi came to India. So give your answers. You can send your answer in chat box also. Anyone can give the answer? In which year Mahatma Gandhi came to India? Yes, one answer came in my chat box, and that is 1915. Yes, Jiakant, is right answer. Mahatma Gandhi came to India in 1915. Now, as you know, the 20 questions will be from 1 mark, and it will be from that part. So, my next question is that Mahatma Gandhi, at which place Mahatma Gandhi started his first movement, first Satyagraha movement? Anyone? Send your answer in chat box. Yes, one more answer. Champaran, Bihar. Himanshu, very good. Your answer is Champaran, Bihar. Due to in against of Britishers due to indigo production. And after that, in 1917, he started his movement in Champaran, Bihar. Then he went to actually 1916 देता है चंपारण मूवमेंट का 15 में आए थे 16 में 1917 में उन्होंने अपना मूवमेंट कहाँ स्टार्ट किया था at which place Mahatma Gandhi started his Satyagraha movement in 1917 in anyone no one knows it was started in Khera district of Gujarat against the in support of mill workers. ठीक है कपड़े मिल में जो काम करने वाले वर्कर्स के सपोर्ट में महात्मा गांधी ने लाया था सत्याग्रह मूवमेंट एंड एट लास्ट in 1918 Mahatma Gandhi started his satyagraha movement in Ahmedabad. ठीक है now the next topic is Rowlatt Act. In class 8, you have studied very little about Rowlatt Act. You are knowing that Rowlatt Act was called Black Law, है ना? Rowlatt Act के बारे में अब जो आप यहाँ पढ़ोगे वो थोड़ा इलोबरेट करके पढ़ना है आपको, ठीक है? कि Rowlatt Act में क्या-क्या है? So just I'm going to start this topic, the Rowlatt Act. Emboldened with his success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1919. This act had been hurriedly passed to the Imperial Legislature Council despite the united opposition of Indian members. It gave the government enormous power to repress political activities and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience movement
against such unjust law, which could start with a हड़ताल on 6th of April. तो अब उन्होंने देखा महात्मा गांधी ऑलरेडी 3 जगह पे उन्हें सक्सेस मिल रहा था, यानी कि अगर इंडिया के बाहर देखें तो साउथ अफ्रीका वाज वेरी सक्सेसफुल in to remove racist movement. After that, when he reached India, he started his first movement, that was in first movement he started in Champaran, and here and there he got success. Then Ahmedabad, and then Gujarat, and then Ahmedabad. In all the places he got success. So correctly emboldened with the success, अपने success के वजह से महात्मा गांधी ने 1919 में जो अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लाया 1919 में, उसके विरोध में पूरे देश में एक साथ उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट ले आया, नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट। अभी आपने देखा था किसी किसी पर्टिकुलर प्लेस पर उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट लाया, लेकिन नहीं, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में उन्होंने पूरे नेशन में एक साथ लाया, एक साथ उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट लाया था। ठीक है, इस सत्याग्रह का विरोध किया था, सत्याग्रह मूवमेंट के द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध किया था। ये एक्ट जो है वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास किया गया था, जिसमें कि इंडियन मेंबर्स भी थे और ब्रिटिशर्स भी थे, लेकिन इंडियन मेंबर्स के विरोध के बावजूद ये एक्ट उन्होंने बड़े जल्दबाजी में अंग्रेजों ने इसे पास कर दिया। इस एक्ट के पास होने से अंग्रेजों के पास बहुत सारे पावर मिल गए। ठीक है, अब वो इंडियन के पॉलिटिकल एक्टिविटीज को वो रिप्रेस कर सकते थे, कर्ब कर सकते थे, और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अब आराम से वो जेल बैठा सकते थे। आप जानते हो ना कि 2 साल के लिए उन्हें जेल मिल जाता था, और उन्हें किसी भी तरह का वकील नो दलील का अधिकार था। मतलब एक बार वो जेल में गए तो वो 2 साल तक पड़े रहेंगे। ठीक है, ना वो बाहर आएंगे और न ही कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज होगी। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि नॉन वायलेंट मूवमेंट जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लाया जाए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब ये है कि वी आर डिसोबेइंग योर लॉ which has been made by the Britishers, the law which are unjust, the law which are not good, that we are not going to obey it, that we are not going to follow it. तो महात्मा गांधी चाहते थे कि नॉन वायलेंट तरीके से अहिंसात्मक रूप में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लाया जाए, और ऐसे अनजस्ट लॉ के अगेंस्ट, जिससे और ये कैसे स्टार्ट होगा, तो एक हड़ताल के साथ शुरू होगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे लाया जाएगा, तो ये लाया जाएगा एक हड़ताल के साथ। रैली वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लाया गया, बहुत सारी शहर में बहुत सारे जगहों पर रैली निकाली गई। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप एंड शॉप्स क्लोज डाउन। ठीक है, दुकानें बंद हो गई, रेलवे वर्कशॉप के वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, रैलियां निकाली जा रही थी। Along by the popular upsurge and scare that lines of communication such as the railway and telegraph would be disrupted, the British administration decided to clamp down on nationalism. अब लग रहा था, अंग्रेजों को ये लग रहा था कि अभी लोग हमारे कम्युनिकेशन के चीजों पर या रेलवे पर या टेलीग्राफ पर लोग अटैक करेंगे। तो इस चीज को देखते हुए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर ने डिसाइड किया कि वो जितने भी नेशनलिस्ट हैं उनको वो अरेस्ट करें। उनको कैसे क्लैम्प डाउन करें। लोकल लीडर्स पिक अप फ्रॉम अमृतसर से जितने भी लोकल लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। महात्मा गांधी को दिल्ली में एंटर करने से मना कर दिया गया। He was barred from entering Delhi, and on 10th April the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attacks on banks, post office and railway stations. और 10 अप्रैल को एक शांतिपूर्ण जो प्रोसेशन जा रही थी, जुलूस जा रहा था, उसके ऊपर अंग्रेजों ने गोलियां चला दी, जिसका परिणाम क्या हुआ कि बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, ये सब पे अब जो लोग इस प्रोसेशन में शामिल थे वो लोग उन जगहों पे अटैक करने लगे।
अब जब अटैक होने लगा तो क्या हुआ, जनरल डायर ने क्या किया कि मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। ठीक है, मार्शल लॉ मार्शल लॉ अब इम्पोज कर दिया कि अब कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज को बैन कर दिया गया। और उसी में कर की जो जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था उसी बीच हो गया था। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ 1919 में। आपने देखा कि रॉलेट डेट 1919 में आया था, उसके बाद जालियांवाला इंसिडेंट्स भी हुआ 1919 में, जो कि हुआ 13th April 1919 को। On that day, a large crowd gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh. Some came to protest against the government's new repressive measures. Others had come to attend the annual Baisakhi fair. Being from outside the city, many villagers were unaware of the martial law that had been imposed. General Dyer, the area, blocked the exit point and opened fire on the crowd, killing hundreds. His object as he declared later, was to produce a moral effect to create in the mind of Satyagraha a feeling of terror and awe. ये आपने पढ़ा कि जनरल डायर, पहले भी पढ़ा है कि जनरल डायर ने उस एंट्रेंस गेट को कैसे लॉक कर दिया। तो आप देख रहे हो कि जालियांवाला बाग में लोग गैदर्ड हो गए। ठीक है, बहुत सारे लोग जालियांवाला बाग में पहुंच गए थे। कुछ लोग गवर्नमेंट की जो रिप्रेसिव पॉलिसीज थी उसके अगेंस्ट थे, तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें बैसाखी मेले को अटेंड करना था। कुछ लोग बहुत आउटसाइड सिटी से आए थे जिन्हें पता ही नहीं था कि यहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो इन सब की वजह से लोग वहां पे गाइडेड हो गए और उसी समय जनरल डायर इंटर हुआ, एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक कर दिया और लोगों पर ओपन फायर किया। तो बाद में उन्होंने उसका जो इस तरह से करने का जो रीजन था वो उसने बाद में क्लियर किया। वाई ही वांट टू डू दैट, क्यों वो करना चाहता था। इसका रीजन ये था कि वो लोगों में, सत्याग्रहियों में एक भय और आतंक का फीलिंग वो क्रिएट करना। ठीक है, as the news of Jallianwala Bagh spread, crowd took to the street in many North Indian towns. There were strife, clashes with the police, and attack on government buildings. The government responded with ritual extirpation, seeking to humiliate and terrorize people. Satyagrahi was forced to rub their noses on the ground, crawl on the street, and do salam or salute to all sides. People were froze and villages around Gurjanwala in Punjab, now in Pakistan, were bombed. Seeing violence spread, Mahatma Gandhi called off the movement. अब देखिए, जालियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया। जालियांवाला बाग इंसिडेंट के जवाब में क्या क्या हुआ, तो लोगों ने क्या किया कि गलियों में अब जालियांवाला बाग का जैसे ही न्यूज फैला, लोग जो थे वो गलियों में निकल आए। बहुत सारे शहरों के, इंडियन टाउन्स के जो गलियां थे उसमें लोग निकल आए। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजों का विरोध करना चाहते थे। अब क्या होने लगा, जब जगह स्ट्राइक्स होने लगे, पुलिस के साथ लोग टकराने लगे, क्लैश होने लगे, गवर्नमेंट बिल्डिंग पर अटैक होने लगा और गवर्नमेंट ने इसे बहुत ही क्रूरतापूर्ण ढंग से इसे दबाने की कोशिश की। ठीक है, उसने लोगों को ह्यूमिलेट किया, लोगों को आतंकित किया। सत्याग्रही जो थे उनको फोर्स किया कि वो अपने नाक को ग्राउंड पे, जमीन पर रगड़े। ठीक है, और गलियों में वो रेंग रेंग के चले। ठीक है, इस तरह से उन लोगों ने उसको ह्यूमिलेट करने की कोशिश की और जितने भी अंग्रेज हैं उनको वो सैल्यूट करे, उनको वो सलाम करे। लोग जो थे वो अब लोग जो थे उन्होंने क्या किया कि जो प्लेसेस थे, गुंजनवाल जो पंजाब में था, वहां पे लोगों ने बॉम्ब गिरा दिया। ठीक है, अब इस तरह से पूरे तरह से वायलेंस, जो महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन, नॉन वायलेंट मूवमेंट ला रहे थे, नॉन वायलेंस मूवमेंट ला रहे थे, अब वो क्या हो गया, वो पूरी तरह से वायलेंट हो गया। क्योंकि जैसे ही जालियांवाला इंसिडेंट हुआ, लोगों का गुस्सा निकलने लगा और लोग रोड पे उतर करके अंग्रेजों का विरोध करने लगे, क्लासेस करने लगे, बिल्डिंग को जलाने लगे, तोड़ने फोड़ने लगे।
इस तरह की एक्टिविटीज करने लगे और बाद में आपने देखा कि बॉम्ब भी उन्होंने गिराया। तो जब इस तरह की स्थिति हो गई तो महात्मा गांधी ने अपने नॉन कोऑपरेशन, अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स को वापस ले लिया। तो आप देख रहे हो कि एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ दिस मूवमेंट। ठीक है, महात्मा गांधी ने अपने इस मूवमेंट को क्यों वापस ले लिया। तो आप यही सारे पॉइंट्स लिखोगे कि आफ्टर द जालियांवाला इंसिडेंट्स व्हाट कंडीशन वाज क्रिएटेड इन इंडिया, इंडिया में किस तरह का सिचुएशन आ गया जिसकी वजह से महात्मा गांधी को अपनी ये मूवमेंट को वापस, अपना इस मूवमेंट को वापस लेना पड़ गया। तो अब देखिए आगे क्या होता है। महात्मा गांधी ने अपने मूवमेंट को, अपने सत्याग्रह मूवमेंट को वापस ले लिया। वाइल द रॉलिक, अभी अभी जो आप पढ़ रहे हो ना, तो ये सिविल डिसोबीडियंस है और ना ही ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसे आप सत्याग्रह मूवमेंट के नाम से उसे पढ़िए, जिसको आप स्वराज मूवमेंट भी बाद में कहा जाए। तो while the Rowlatt सत्याग्रह had been a widespread movement, रॉलेट सत्याग्रह देखिए had been widespread movement, it had still limited mostly to the town and city. Mahatma Gandhi now felt to need to launch a more broad-based movement in India, but he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindus and the Muslims close together. महात्मा गांधी देख रहे थे कि जो सत्याग्रह मूवमेंट लाए वो पूरा नेशन वाइड लाना चाहते थे, लेकिन वो नेशन वाइड हुआ नहीं। कुछ ही शहर और कुछ ही सिटीज और टाउन तक ये सीमित करके रह गया। महात्मा गांधी ने फील किया कि नहीं, और भी ज्यादा ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट उन्हें लाना चाहिए, लेकिन ये तब तक संभव नहीं होता जब तक कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ नहीं होते। ठीक है, one way of doing this, he felt that he was to take up the Khilafat issues. The First World War had ended with the defeat of Ottoman Turkey, and there were rumors that a harsh treaty was going to impose on the Ottoman Emperor, the spiritual head of the Islamic world, the Khalifa. To defend the Khalifa, the temporal powers, a Khilafat committee was formed in Bombay in March 1919. देखो, टर्की में फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद तो टर्की का जो ऑटोमन एम्पायर था उसकी हार हो चुकी थी और एक रूमर फैल गया था कि ऑटोमन जो एम्परर है वो जो खलीफा होते हैं, इस्लामिक हेड होते हैं, जो उनको खलीफा कहा जाता है, उनके साथ एक ट्रीटी साइन करने जा रहा है। और ये ट्रीटी बहुत ही हार्श और ह्यूमिलेटिंग होगी। ठीक है, इसलिए इसका विरोध करने के लिए क्या किया गया, एक खिलाफत कमेटी बनाई गई। खिलाफत कमेटी बनाई गई बॉम्बे में 1919 में। और कह रहे कि यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर लाइक द brother Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of united mass action on the issue. और दूसरी ओर आपको पता होना चाहिए कि खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले जो थे वो थे मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दोनों भाई, ये दोनों भाई जो थे वो महात्मा गांधी से डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से एक मास एक्शन इनके खिलाफ लिया जाए। महात्मा गांधी को भी एक अपॉर्चुनिटी देखा, एक पॉसिबिलिटी देखा कि पूरे कंट्री को में हिंदू मुस्लिम को यूनाइट किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि महात्मा गांधी ने कलकत्ता में 1930 सितंबर 1920 में कलकत्ता सेशन में उन्होंने ये अपनी बातें रखी थी। ठीक है, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as स्वराज। तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लीडर्स को कन्विंस किया कि जरूरत क्या है कि एक ऐसा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लाया जाए जो कि खिलाफत मूवमेंट के साथ हो और साथ में ये स्वराज मूवमेंट जो है वो भी साथ में हो, सब मिला करके एक मूवमेंट चलाया जाए ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हो और ये जो मूवमेंट हो ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव बनाया जाए। ठीक है, तो इसलिए ये फिर बाद में उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लाया। ठीक है, बाद में उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लाया।
अभी आपने जो रॉलेट एक्ट पढ़ा, रॉलेट एक्ट जो था वो रॉलेट एक्ट जो था वो एक सत्याग्रह मूवमेंट का हिस्सा था। लेकिन आपको इनके साथ साथ आपको दो और मूवमेंट पढ़ना है, और वो है सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी की क्या थिंकिंग थी बच्चों कि क्यों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लाना चाहिए? आप पहले भी पढ़ चुके हो कि वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी की थिंकिंग क्या थी, कोई भी बोलिए। एनीवन? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स का मतलब क्या था? नॉट टू कॉपरेट विद द ब्रिटिश। ये था ना कि अंग्रेजों के साथ हमें कॉपरेट नहीं करना है। महात्मा गांधी का कहना था कि अंग्रेजी शासन इसलिए चल रही है क्योंकि इंडियंस उसको कॉपरेट कर रहे हैं। अगर इंडियन कॉपरेट करना बंद कर दे तो ये जो शासन है वो ब्रिटिश शासन का एंड हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश शासन का एंड हो जाएगा। इसलिए क्या चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत है? ये जरूरत है कि इंडियन जो है वो ब्रिटिशर्स को कॉपरेट करना बंद कर दे। ठीक है, तो इसलिए महात्मा गांधी ने अपनी बुक, उनकी बुक है हिंद स्वराज, ध्यान रखना है नेम ऑफ द बुक, एंड इन विच ईयर इट वाज रिटन, इन 1909, एंड द फेमस बुक ऑफ महात्मा गांधी हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने ये डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियन एंड हैड सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ हिज कोऑपरेशन। उन्होंने अपनी बुक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने लिखा था कि ब्रिटिश रूल एस्टैब्लिश इंडिया में इसलिए है क्योंकि उसे इंडियन जो है वो कॉपरेट कर रहे हैं। और अगर और वो यहाँ सरवाइव भी इसलिए कर रहा है क्योंकि इंडियन कॉपरेट कर रहे हैं। अब हर जगह मान लो कि ब्रिटिश अपने स्कूल कॉलेजेस चला रहे हैं, तो उसमें पढ़ने वाले बच्चे तो इंडियन हैं, उसमें पढ़ाने वाले टीचर्स तो इंडियन हैं, या ब्रिटिश का जो कोर्ट है उसमें इंडियन वकील काम कर रहे हैं, ब्रिटिश की जो चीजें हैं उसको इंडियन सेल कर रहे हैं। तो जो भी या आर्मी है तो आर्मी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडियंस का। तो महात्मा गांधी का यही करना था कि वो ब्रिटिश रूल इंडिया में सरवाइव इसलिए कर रहा है क्योंकि इंडियन जो है, क्योंकि क्योंकि इसे इंडियन ही उसे चलाने में उसका कॉपरेट कर रहे हैं। इफ इंडियन रिफ्यूज टू कॉपरेट with British rule in India would collapse within a year and Swaraj would come। अगर इंडियन जो है वो रिफ्यूज कर दे अंग्रेजों की सपोर्ट करना, तो ब्रिटिश रूल जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा 1 साल के अंदर, और स्वराज आ जाएगा। ठीक है, तो हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकेम ए मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे, नॉन कॉपरेशन कैसा एक मूवमेंट बना? गांधी जी प्रपोज दैट मूवमेंट शुड अनफोल्ड in stages। It should begin with the surrender in titles that the government awarded। महात्मा गांधी का कहना था कि ये जो है स्टेप बाय स्टेप होगा। सबसे पहले क्या होगा कि लोगों को अपने जो गवर्नमेंट ने जो लोगों को जो टाइटल दिए हैं, वो टाइटल अवार्ड किए हैं, उसको लोग बाइकआउट कर दें। ठीक है, सो इट शुड बिगिन, स्टार्ट किससे होगा? विद द सरेंडर ऑफ द टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवार्डेड एंड द बाइकआउट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स। और लोग किस किस चीज का बहिष्कार करेंगे, किस किस चीज का वो बाइकआउट करेंगे? तो बाइकआउट करेंगे वो जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे काम कर रहे हैं, जैसे सिविल सर्विसेज में काम करने वाले लोग, या आर्मी जो ज्वाइन करके रखे, या पुलिस में जो काम कर रहे हैं, कोर्ट्स में काम कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में काम कर रहे हैं, स्कूल है, या फॉरेन गुड्स का लोग सेल कर रहे हैं। सबसे पहले लोग इनका बाइकआउट करें। Then, in case the government use repression, a full civil disobedience campaign would be launched। और अगर सरकार इसका विरोध करेगी तो इसके लिए फुल फ्लेज में क्या लाया जाएगा? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, सो though the summer of 1920 Mahatma Gandhi and Shaukat Ali toured extensively mobilizing for support of the movement।
तो तुरंत ये प्लान था, ठीक है, ये प्लान था। लेकिन इसके पहले 1920 में महात्मा गांधी और शौकत अली जो थे, उन्होंने पूरे देश में घूमा और घूम घूम कर लोगों के सपोर्ट लेने की कोशिश, ठीक है, लोगों से सपोर्ट लेने की कोशिश की। महात्मा गांधी सत्याग्रह को भी समझाने के लिए बहुत दिनों तक घूमे, ताकि लोगों को सत्याग्रह का मतलब समझ में आ जाए। तो लोगों के सपोर्ट के लिए उन्होंने बहुत जगह घूमा। में within many within the Congress were however concerned about the proposal. They were reluctant to boycott the council elections scheduled for November 1910. कांग्रेस के अंदर जो नेशनल कांग्रेस थी, जिसके जिसके लीडर में या जिसके मेंबर थे महात्मा गांधी, उसके भी बहुत सारे मेंबर जो थे वो महात्मा गांधी के विचारों से सहमत, ठीक है। और ये चाह रहे थे कि जो काउंसिल इलेक्शन होगा उसमें वो बाइकआउट करेंगे, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो कि नवंबर 1920 में होने जा रहा था। And they feared that the movement might lead to the popular violence. लेकिन वो इस चीज का उन्हें डर भी लग रहा था कि कहीं ऐसा नहीं कि फिर से वायलेंस हो जाए। In the month between September and December, there was an intense struggle within the Congress. For a while, there seemed to be meeting point between the supporters and the opponents of the movement. Finally, at the Congress session at Nagpur in December 1920, a compromise was worked out and the non-cooperation movement was adopted. ठीक है, तो इसके तरह की इस बात पे लेकर के सपोर्टर्स और विरोधियों के बीच कोई मीटिंग नहीं हुई। फाइनली कांग्रेस सेशन नागपुर में, जो कि दिसंबर में हुआ था 1920 में, एक कॉम्प्रोमाइज हुआ और कॉम्प्रोमाइज के द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को माना गया। मतलब कहने का मतलब कि हर मेंबर्स एग्री नहीं थे। बिसाइड दिस, the some of the people, yeah, most of the people were made a compromise to launch this civil disobedience, launch non-cooperation movement again. Okay, so how did the movement unfold? Who participated in, and how did different social groups conceive of the idea of non-cooperation? कि कैसे अनफोल्ड हुआ, महात्मा गांधी ने क्या कहा था, कैसे अनफोल्ड होगा? सबसे पहले लोग सरेंडर ऑफ टाइटल्स करेंगे। तो लेकिन हमें देखना है कि हुआ कैसे। ये तो महात्मा गांधी की थिंकिंग थी, कैसे कैसे होना है, लेकिन कह रहे कि ये कैसे अनफोल्ड हुआ, किस कौन कौन से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, एंड किस तरह से डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के आइडियाज को क्या समझा। ठीक है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से समझा। तो डिफरेंट स्टैंड विद द मूवमेंट्स, ये इसमें से क्वेश्चन आता है कि अलग अलग लोगों में सब अलग अलग ग्रुप है, तो क्वेश्चन बनेगा कि इन लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कैसे लिया। तो द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1920। अब देख रहे हो कि नागपुर सेशन जो 1920 तक डिस्कशन ही हो रहे थे, तो ये लॉन्च हुआ 1921 में। नॉन कोऑपरेशन लॉन्च कब हुआ? 1921 में। वेरियस social groups participated in this movement, each with its own specific aspiration. All of them responded to the call of Swaraj, but the term meant different things to different people. ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विद खिलाफत मूवमेंट लाया गया 1921 में। बहुत सारे सोशल ग्रुप्स ने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, लेकिन सबका अलग अलग अपनी थिंकिंग थी, अलग अलग अपनी आशाएं थी, और सब लोग जो थे वो स्वराज को अपने अपने ढंग से देख रहे थे कि स्वराज का मतलब था अपना स्वराष्ट्र लाना, लेकिन इन टर्म को अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग ढंग से देखा जा रहा। ठीक है, तो एक पॉइंट हम क्लियर कर सकते हैं, द मूवमेंट इन द टाउन। टाउन में लोग जो थे स्वराज का क्या मतलब ले रहे थे, तो उसको हम लोग देखेंगे। द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास participation in the cities. Thousands of students left the government-controlled schools and colleges. Headmaster and teacher resigns. Lawyers gave up their legal practices. The council elections were boycotted in most provinces except Madras, where the Injustice Party, the party of non-Brahmins, felt that entering the council was one way of gaining some power.
something that usually Brahmin had access to. तो ये शहरों में जो हुआ वो मिडिल क्लास पीपल लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ। हजारों बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, जो कि जिस पर अंग्रेजों का कंट्रोल था, गवर्नमेंट कंट्रोल, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर स्कूल थे, जो कॉलेजेस थे, तो बहुत सारे बच्चे ने उसको छोड़ दिया, बायकॉट कर दिया। हेडमास्टर और टीचर्स ने रिजाइन कर दिए। लॉयर्स जो थे उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दिए। काउंसिल इलेक्शन जो कि नवंबर 1920 में होने वाला था, उसका भी लोग बायकॉट कर दिया। सिर्फ एक जगह इलेक्शन में लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और वो था मद्रास। मद्रास में एक्चुअली अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि जो कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है, नेशनल कांग्रेस जो थी, उसको लोग ब्राह्मणों की पार्टी कहते थे। मद्रास में इसलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि वो जो ग्रुप में इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया वो नन ब्राह्मण लोगों का ग्रुप था। वो चाहते थे कि वो पावर में आए, सत्ता में आए, और उसके बाद वो सत्ता में आने के बाद वो कुछ मतलब कुछ पावर वो गेन करना चाहते थे बेसिकली। तो कह रहे कि जो वैसे वो गेन करना चाहते थे कि जो कि ब्राह्मण के पास था, यानी कि कांग्रेस के मेंबर्स के पास था। The effect of non-cooperation on the economic front were more dramatic. Foreign goods were boycotted, liquor shop picketed, and the foreign clothes burned in huge bonfires. The import of foreign clothes halved between 1921 and 2022. Its values dropping from rupees 102 crore to 57 crore. In many places, merchants and traders refused to trade in foreign goods or finance foreign trade. As the boycott movement spread, the people began discarding imported clothes and wearing only Indian one. Production of Indian textile, mill and handloom went up. अब देखिए इसका इफेक्ट क्या हुआ, इकोनॉमी पे क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इकोनॉमी में क्या इफेक्ट, तो ये बड़ा ही ड्रामेटिक इफेक्ट हुआ। फॉरेन गुड्स को बायकॉट किया गया, जो भी लिकर शॉप थे उनको भी उन पर घेराबंदी कर दी गई, मतलब कोई वहां जा नहीं सकते हो, कोई यहाँ एंटर नहीं कर सकते थे, ठीक है, लोगों ने घेराबंदी कर दी थी। फॉरेन कपड़े जो थे उनमें जलाए जा रहे थे। फॉरेन कपड़ों का जो व्यापार जो था, ब्रिटेन से जो आ रहे थे कपड़े 1921 में, वो 1922 में घट करके आधे हो गए। जहां 102 करोड़ के कपड़े यहाँ आते थे, वहां पे घटकर 57 करोड़ हो गए। क्यों? क्योंकि विदेशी कपड़े जलाए जा रहे थे और इंडिया के अपनी टेक्सटाइल्स के बने हुए सूती कपड़ों को लोग पहन रहे थे। But this movement in the cities gradually slowed down for a variety of reasons. Khadi clothes were often more expensive than mass production mill cloth, and poor people could not afford to buy it. Boycott of British situation institution posed a problem. For the movement to be successful, alternative Indian institution had to set up so that could be used in place of the British one. They were sure to come up, so student and teacher began trickling back to government school and the lawyer that work in the government schools. इस मोमेंट जो था वो धीरे धीरे करके स्लो डाउन हो गया, ठीक है। इसके बहुत सारे रीजन थे क्यों स्लो डाउन हो गया। अब खादी के कपड़े जो थे वो इंडियन टेक्सटाइल्स के द्वारा बनाए जाते थे, हाथ से बनते थे, तो वो कपड़े महंगे होते थे, जबकि मशीनों में मास लेवल पर प्रोडक्शन होता था, तो वो कपड़े कैसे होते थे, सस्ते होते थे। तो अब गरीब लोग जिनके पास खाने पहनने के लिए नहीं है, वो महंगे कपड़े नहीं खरीद पाते थे, तो उन्होंने धीरे धीरे करके विदेशी कपड़े खरीदना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ने तो विरोध करने की बात की, लेकिन कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं। इंडिया में भी वैसे इंडस्ट्री बन जाते, इंडिया में खुद ही मशीन मेड कपड़े आ जाते, तो लोग विदेशी कपड़ों का विरोध हमेशा के लिए कर देते, लेकिन ऐसा सिचुएशन था नहीं, ठीक है, ऐसा सिचुएशन था नहीं, ब्रिटिश कपड़े इंडिया के पास कुछ था ही नहीं। तो धीरे धीरे लोगों ने क्या किया कि ब्रिटिश कपड़े वापस खरीदने शुरू कर दिए। स्टूडेंट टीचर भी धीरे धीरे स्कूल जाने लगे, लॉयर्स ने भी कोर्ट को ज्वाइन कर लिया। तो आप देख रहे हो कि लोगों ने विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे करके लोगों ने वापस अपने अपने कामों पे चले गए। नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू टुमारो। तो any problem? Only 3 students are here. If you have problem,
एनीवन, एनी प्रॉब्लम्स? हालांकि आप लोग का पढ़ा हुआ है, ठीक है। ओके, जस्ट आई एम एंडिंग माय क्लास। आई डोंट थिंक दैट यू हैव एनी प्रॉब्लम। अगर होगा तो फिर मैं क्लास में लेकर। गुड डे टू एवरीवन।